work power energy. Okay, so this is your next chapter after Newton's laws of motion, work power energy. We will start from work. We will see first what is work actually. Well, always in physics, work is done for force. If somebody will ask you that who is doing work, you will say force is doing work. Always you must know your force is doing work. I mean, a work is always done by force. So, in entirely this chapter, we will see what are the various kind of force working. Okay, I mean, we will work out those numericals for different kind of forces. We will see how many kind of forces are there and what is their work. Well, this work can be of two types. One is by constant force. When your force is constant, during that time what can be the work? And the second one is by variable force. Okay, the first thing you need to remember, the work is always done for force. I mean, who is doing the work? Force is doing the work. The second point you need to remember that this work can be broadly classified into two categories. The first one is your by constant force. I mean, you need to get work done by constant force, and the second one is you need to get work done by variable force. Okay. Now we'll go for the definition of force. So this is what the introduction of work. You note it down. Just note it. Now we'll see what is the definition of work. What is the most appropriate definition we can formulate for work? Well, I will start. Your work is a scalar quantity. So work is a scalar quantity. And the most appropriate definition of work is it is the scalar product of force and displacement. Force and displacement. If you remember the scalar product, we have told you in vector chapter, this scalar product is also called as dot product. This scalar product also known as dot product, that we have told you in vector chapter. While studying scalar and vector, we have explained you what is a dot product and what is a cross product. So for work, we are using the dot product. Which two quantity has to be dot product? One is your force and the second one is your displacement. Well, if you remember, this both physical quantities are vector quantity. Force is a vector quantity as well as your displacement is a vector quantity. So we are taking dot product of both force and displacement, and we are taking dot product of both vector quantity, and the result will come out as scalar product. That is why work is called as a scalar quantity. So when you do the dot product of two vector quantity, your result will come out to be a scalar quantity. That is why we say if we dot product force and displacement, your result is work, and therefore work is a scalar quantity. Note it down.
Okay. So for work we will use the symbol W, the most easy symbol. You need not put any arrow mark above W because it is a scalar quantity. So simply it will stay like W. Okay. So I'll write force. Well, force is a vector quantity. Then I will put an arrow mark here, dot. Okay. Where S is your displacement. Okay. So let us remove this arrow mark. This is the mode of S. This is the mode of F. And what is the angle between these two? That has to be cos theta. So finally, your formula of work can come out to be Fs cos theta. You need to remember this formula, okay? If someone will ask you that what is the formula for work, you can tell it this is Fs cos theta. This is Fs cos theta. Or else you can say this is F dot product by S. This is force dot product by displacement. So this is the most appropriate definition of work. Note it down. Okay, take a screenshot. So I tell work done by constant force F. This F is your constant force. I mean this force is not variable. So you can write the formula for work is Fs cos theta. Remember again what I am telling, if this force is constant, then your formula will be work equal to Fs cos theta. If your force does not constant, then you cannot apply this formula, you will have another formula. So be remember that this formula is only applicable for constant force. So up to now you just remember this point. Now let's see how this formula came. Okay. So in your earlier classes, in your high school, you might have studied that work is simply the multiplication of force and displacement, right? In your high school career, in your 10th class or 9th class and all, your science teacher might have told you that simply work can be the multiplication of force and displacement. Actually, that statement was partially correct. That was not fully correct. So today we will see diagrammatically or graphically how this formula came out. Okay. So let's discuss the diagram. So we have a surface here. Let us place a mass here M. Let me show you that there is an external force. This is an external force. We have applied here with an angle theta, and let us say the body is moving in this direction, so its acceleration is x. So let us consider like the situation is there. Okay, so 1 minute. Let me draw the three-body diagram. Your earth is pulling this body vertically downward, that is your mg force, and here is your normal direction. Okay. Apart from that, even if the body is moving in this direction, also kinetic friction also active, just opposite to the motion of the body. Well, very interesting concept that you closely just observe. If I had asked you how many forces are there here, how many forces? 1. This is force number 2. This is force number 3. This is force number 4. So in this case,
In this case, there are four forces. यहां पे तुम्हारा चार फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, दूसरा है तुम्हारा वेव, तीसरा है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन एंड चौथा है तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन. Somebody will ask you find work done in given question. In given question, can we do that? क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते. और कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तुम्हें कि फाइंड वर्क डन इन गिवन क्वेश्चन, तुम कभी भी नहीं निकाल सकते हो वर्क डन. क्यों? तुम तो बोलोगे कि हमें तो फॉर्मूला पता है, W इक्वल टू Fs cos थीटा. यहाँ पे हम डाल देंगे Fs डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से देख लेंगे, फोर्स का वैल्यू डाल देंगे, cos थीटा जो भी थीटा होगा वो डाल देंगे और तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा. ऐसा नहीं होगा. क्यों? थोड़ा ध्यान दो. मैंने इंट्रोडक्शन में ही तुमको बता दिया, ये जो वर्क होता है हमेशा जो पर्टिकुलरली कौन से फोर्स के तहत होता है वो तुम्हें पता करना पड़ेगा. मतलब क्वेश्चन में ये तुम्हें पूछना पड़ेगा कि किस फोर्स का वर्क डन निकालना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन हमेशा अंडरलाइन करके लिखो. व्हिच फोर्स, कौन से फोर्स का वर्क डन निकालना है ये जानना जरूरी है. यहाँ ऐसे रैंडमली किसी का भी तुम वर्क डन नहीं उठा सकते हो. और मान लो तुम अगर हर एक का यहाँ पे हर एक फोर्स का अलग अलग अगर वर्क डन निकालोगे तो चारों का डिफरेंट आएगा, सेम ही नहीं आएगा. तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम किसका वर्क डन निकाल रहे हो. तो हमेशा क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा कि कौन सा फोर्स का वर्क डन निकालना है. ये हमेशा ध्यान दो ये पॉइंट कि कौन सा फोर्स का वर्क डन निकालना है. यहाँ पे तो चार फोर्स है, क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा देगा फाइंड वर्क डन बाय, अभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तब तुम क्या करोगे, ये तीन फोर्स को इग्नोर करोगे. मतलब तुम्हारे लिए ये तीन फोर्स है ही नहीं, सिर्फ तुम इसका ही वर्क करोगे. तो क्वेश्चन में हमेशा देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सा फोर्स का वो वर्क डन पूछता है. ऐसे रैंडमली कोई भी फोर्स लेकर तुम नहीं कर सकते हो. जो फोर्स को पूछा है उसी फोर्स का वर्क डन हमें निकालना है. मान लो यहाँ पे पूछ लेता फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना, क्योंकि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है. हर एक फोर्स, दुनिया का कोई भी फोर्स हो, फिजिक्स में कोई भी फोर्स हो, तुम्हें हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि फोर्स एक टाइप का नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं. राइट? तो जितने भी सारे फोर्स है सारे वर्क डन कर सकते हैं, सबका वर्क निकल सकता है. तो तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में ये गिवन होगा कौन से फोर्स का तुम्हें वर्क निकलना. ये हो गया पहला वाला फोर्स. चलो अभी देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स का हम कैसे निकालेंगे वर्क. ओके, थोड़ा इतना नोट कर लो. थोड़ा नोट कर लो. चलो अब निकालेंगे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना तुम्हारा, उसका क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे F एक्सटर्नल, इसका दो कंपोनेंट बन सकता है. ये वाला कंपोनेंट उसका बन जाएगा F cos थीटा. कंपोनेंट निकालना बहुत बार हम सिखा चुके हैं वगैरह दोनों के. और ये वाला कंपोनेंट उसका बन जाएगा F. मान लो जब ये मूव करेगा कुछ देर बाद ये अपनी ओरिजिनल जगह से थोड़ा डिस्प्लेस होके यहाँ चला गया, तो इन दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है मैं उसको नाम दे देता हूं S. मैं उसको नाम दे देता हूं S. तो देखो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लिखना पड़ेगा अपना. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज फोर्स, देखो बहुत अच्छी तरह से, force multiplied by S
मैं समझाऊंगा ये टर्मिनोलॉजी आया कैसे। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन वो है जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करो, काम करो। यहाँ पे मुझे बोलो ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, F cos थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F cos थीटा मल्टीप्लाई कर लो S से, तो ये बन गया तुम्हारा, थोड़ा उसको सीक्वेंस में ला लो, ये S थोड़ा आगे लाओ Fs और ये cos थीटा थोड़ा पीछे ला सकते हो ना, ये तो सब कम्यूटेटिव चीज है, ये सब कर सकते हो। मैथमेटिक्स में तुम्हें ऑलरेडी प्रॉपर्टी पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तुम कुछ भी कर सकते हो, आगे पीछे ये सब कर सकते हो, राइट। सो मैं अगर देखो एक नया सा डेफिनेशन आया हुआ का फोर्स का जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, अगर उससे तुम डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आ जाएगा वो है तुम्हारा वर्क। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली Fs cos थीटा, और तुम्हें पता है कोई भी तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे डॉट प्रोडक्ट मान लेते हैं, तभी हम उसको फाइनली लिखते हैं कि F डॉट S। मतलब यहां से उठ के ये फॉर्मूला तक पहुंच गया है। ओके, यहां से उठ के ये फॉर्मूला तक आया है, मतलब इसका रिवर्स आप नहीं है, हम यहां से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम जब इंटरप्रेट कर रहे हैं ना वर्क को, हम ऐसे कर रहे हैं कि हमेशा बॉडी के मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो बॉडी के मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होगा। और अगर वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फोर्स को तुम अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लिए तो जो तुम्हारा आ जाएगा वो है वर्क डन। ओके, तो इतना नोट करो और इसको हम बाद में थोड़ा लिख लेंगे, इतना नोट करो। या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो इसको थोड़ा वर्ड में नोट करते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ force is multiplied by displacement gives us work done by that said, जिसको हम ऐसे लिखते हैं F cos थीटा इंटू S, ये भी सही। The horizontal component of force is multiplied by displacement gives us work done by that said force। कौन सा फोर्स, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फोर्स ही लेने वाले हो। हाँ, ओके, कोई दूसरा फोर्स नहीं। चलो अब देखेंगे, बढ़िया सी चीज देखेंगे यहाँ पे कि ये जो थीटा है ना, ये कैसे तुम्हारा पूरा वर्क को बदल के रख सकता है। मतलब ये थीटा अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट वर्क में दिखेगा, कैसे दिखेगा वो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज भी बोल सकता हूँ तुम्हें कि जो वर्क है ना फोर्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स तुम्हारा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क भी हो सकता है। तो ये थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, चलो देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। 3 केस उसका बढ़िया सा केस देखते हैं। एक देखेंगे हम जीरो वर्क डन क्या है, ये पहला वाला केस देखेंगे। दूसरा वाला तुम्हारा देखेंगे पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, और तीसरा वाला जो केस है ना वो देखेंगे हम ये जो नेगेटिव वर्क डन ये क्या चीज होता है।
ये तीनों चीज हम देखेंगे। ओके, तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये जीरो वर्क डन होता क्या है, फिर दूसरे टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, और तीसरे में नेगेटिव वर्क डन क्या। चलो पहले जीरो वर्क डन स्टार्ट करते हैं। जीरो वर्क डन एक बहुत फेमस सा एग्जांपल है तुम्हारा फिजिक्स बुक में, कोई भी बुक उठा लो, ज्यादातर बुक में ये फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हारा एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, देयर इज अ रेलवे प्लेटफॉर्म, सबको पता होगा रेलवे प्लेटफॉर्म ना, जहां पे तुम ट्रेन वगैरह कैच करते हो उसको हम रेलवे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। कोई एक पुली, पुली पता है ना सबको, अपने सर के ऊपर एक बॉक्स को कैरी करके, बॉक्स को वो कैरी कर रहा है, कहां रखा है बोल पड़ रहा है, उसके सर के ऊपर रखा है, और वो आगे बढ़ रहा है ऐसे, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो आगे। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय man working on this platform, working on this platform. Okay, बड़ा सा क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कोई भी बुक में तुम्हें मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक रेलवे प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक पुली अपने सर के ऊपर एक बॉक्स लेके आगे बढ़ रहा है, मतलब तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली ड्राइंग में राइट साइड की तरफ है। और तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय मैन वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये जो आदमी बॉक्स लेके प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहा है, इसके द्वारा कितना काम हो रहा है। तो जनरल तुम्हारा आंसर होगा वो तो बहुत काम कर रहा है, राइट, लेकिन फिजिक्स बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ना, यहां पे लिखना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये पता है कितना ये वर्क कर रहा है, जीरो वर्क कर रहा है। सुना होगा ये क्वेश्चन, अब देखिए कैसे हो गया ये जीरो वर्क। ओके, एक्चुअली ये जो जीरो वर्क है ना, ये जो बॉक्स का वेट है ना, ये एक फोर्स है ना, ये फोर्स का वर्क जीरो। कैसे देखो, अगर बॉक्स उसका ऐसा सर पर है तो उसके ऊपर जो मान लो कुछ बॉक्स का मास है m, तो और फिर उसे कितना फोर्स है खींचेगा, mg फोर्स है। तो फोर्स देखो इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इन दोनों के बीच एग्जैक्टली जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और तुम्हें वर्क का फॉर्मूला पता है, तुम्हें बस फॉर्मूले में ही जाना है, वर्क इक्वल टू एफएस कॉस थीटा। अच्छा, फोर्स याद कौन है, mg, एस डिस्प्लेसमेंट में हमने एस ले लिया, कॉस ये थीटा है क्या एक्चुअली, ये थीटा क्या है एक्चुअली। पहले एग्जांपल में मैंने तुम्हें दिखा दिया था कि अगर ऐसा कोई मास है और अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये थीटा क्या है, ये हमेशा वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा। सो हम यहाँ पे एक लाइन और जोड़ेंगे कि ये जो थीटा होता है ना, एंगल बिटवीन, कम ऑन टेल मी, एंगल बिटवीन क्या, फोर्स एंड, ये हमेशा हमें याद रखना, हमेशा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो तुम देख लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री डाल दो, और तुम्हें पता है cos 90 का वैल्यू है 0, so this entire quantity will become 0, so you will get your work done equal to 0. That is what your answer. Note करो,
जैसे और एक बढ़िया सा सवाल होता है तुम्हारा बुक में करंट पब्लिशर के बुक में देखोगे तो एक लड़का अगर पूरा रातों भर अपने चेयर में बैठ के पढ़ रहा है तो सुबह तुम्हें कोई पूछेगा आपको वो कितना वर्क डन कर रहा है, वो कितना काम किया है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो 0 वर्क डन कर रहा है। ओके, सो अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो जो वर्क डन वहां पे निकल के आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 0 वर्क डन। चलो इतना नोट करो, इसका आउटलाइन बनाते हैं, एक पॉइंट इसका लिखेंगे कि कौन से कंडीशन में वर्क डन 0 होगा। हो गया, लिख लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी हो जाएगा। चलो बेटा, ओके, when theta equal to how much 90 degree, when theta equal to 90 degree, I mean angle between force and displacement. Okay, then work done by given force is 0। इसके रेफरेंस के लिए एक ड्राइंग ऐसे बना लो, मान लो ये है तुम्हारा फोर्स और इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। सो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क डन Fs cos 90। लिख लो। फिर दूसरे वाला केस में चलेंगे तो पॉजिटिव वर्क डन कैसे होता है, इसका आउटलाइन बना लो। हो गया है क्या, हो गया, चलो फिर देखेंगे पॉजिटिव वर्क। थोड़ा देखते हैं उसको। मान लो यहाँ पे ओके, मान लो चलो इसका मैक्सिमम वाला कैसे देखते हैं। अगर तुमने फोर्स को ऐसे खींचा, ओके, डिस्प्लेसमेंट ही इस तरफ है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को हम मानते हैं यस, फोर्स को मानते हैं। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है कोई मुझे बता सकता है 0 डिग्री। तो यहां पे देखो मैं वर्क डन निकालूंगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है F S cos 0। सो cos 0 का वैल्यू तुम्हें पता है 1, दिस इज योर Fs। सो यहां पर हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू Fs। क्या ये पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये जो Fs आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन, और इसको मैक्सिमम वर्क डन भी बोला जाता है, पॉजिटिव वर्क डन, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क। ओह यहाँ पे थोड़ा यही दिक्कत होता है मैक्सिमम। चलो इसको नोट करो, इसको नोट कर लो थोड़ा।
हो गया? चलो तो उसका आउटलाइन बनाएंगे। When theta equal to 0 degree between force and displacement, then the angle between then the work done will come out to be how much? Maximum. Okay, that is W equal to Fs. ये वाला केस वही तो मैं हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था। ओके, जो बोलते थे ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर लो वर्क आ जाएगा, यही वाला केस है। वो एक्चुअली पर्टिकुलर केस है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 हो जाएगा ना, तो तुम्हारा वर्क जो हो जाएगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। यही वाला केस हमारा हाई स्कूल में था। ओके, सो इफ यहां पे एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, इफ एंगल थीटा is in between 0 to 90 degree, then the work done is कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे? जो थीटा है तुम्हारा वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और आइदर तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा। तो ये वाला कंडीशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंडीशन, याद रखो। अगर तुम्हारा थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच आ गया तो जो भी तुम्हें वर्क डन मिलेगा उस वर्क डन को हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि अगर तुम्हारा थीटा कभी 0 के बराबर हो गया तुम्हें मैक्सिमम वर्क मिलता है और वो मैक्सिमम वर्क ही तुम्हारा पॉजिटिव वर्क है। 90 डिग्री पे तो 0 बन जाता है, तो वो वाला तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे जो थीटा इज लेसर देन 90 लिखा, वहाँ पे इक्वल मार्क उसके साथ नहीं दिया क्योंकि वो 90 से हमेशा छोटा ही रहेगा। ओके, 90 हो गया तो 0 हो जाएगा ना, तो थीटा हमेशा 90 से छोटा रहेगा, या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से ज्यादा होगा। तो जो कंडीशन बनेगा वो वाला है तुम्हारा पॉजिटिव वर्क डन का कंडीशन। ओके, तो ये एक बढ़िया पॉइंट बन गया हमारा, इसको नोट कर लो। हो गया? चलो इसका एक बढ़िया सा मैं पॉइंट बताता हूं तुम्हें। इफ पॉजिटिव वर्क डन इज देयर, अगर कहीं पे मान लो कोई न्यूमेरिकल में तुम्हारा पॉजिटिव वर्क डन आ गया, पॉजिटिव वर्क डन इज देयर, देन energy is given to the system। ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसका मीनिंग क्या है हम देखेंगे। ओके, ये आगे जाके हमें समझ में आएगा क्योंकि अभी तो तुम्हें एनर्जी पता नहीं है ना। जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा ना तब ये बात का समझ तुम्हें आएगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, पहले इसको नोट करो। मतलब कोई तुम्हें पूछेगा पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है ना, तुम कोई एक सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो। अरे वही एक ही चीज है यार, किसी को तुम एनर्जी दोगे तभी तो उसका काम बढ़ के जाएगा ना, वर्क उसका ज्यादा होते जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क डन में हम एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव वर्क डन में हम एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी लॉस होगा हमारा, यहाँ पे एनर्जी गेन होगा। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन जो है ना ये एनर्जी गेन कर रहा है। ओके, ये वाला जो केस है ये क्या कर रहा है, एनर्जी कम ऑन गेन कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है। पॉजिटिव वर्क डन में जो बॉडी है या फिर जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं वो एनर्जी हमेशा गेन करेगा। ओके, चलो तीसरा वाला केस देखते हैं। तीसरा वाला केस है हमारा नेगेटिव वर्क डन। तो
तो नेगेटिव वर्क डन में होता क्या है, ओके, व्हेन थीटा इज more than 90 degree, when theta is more than 90 degree and लेस देन 180 लिख लो। पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में उसका एंगल वगैरह डिस्कशन कर लेंगे। थोड़ा देख लो ये वाला केस। अच्छा, कभी तुमने सोचा है क्या तुम्हारा फोर्स इस तरफ हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा सोचो, क्या ये केस पॉसिबल है? मैं अगेन ये चीज को डिस्कस करना चाहूंगा, क्या ऐसा हो सकता है तुम एक्सटर्नल फोर्स इधर दे रहे हो और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो सकता है? ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा केस लग रहा है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर तुम्हें याद होगा हम लोगों ने फ्रिक्शन में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है और ये जो वर्क डन है वो किसी भी फोर्स का निकल सकता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का निकालेंगे, कभी ग्रेविटी का भी निकाल सकते हैं, कभी फ्रिक्शन का भी निकाल सकते हैं, कभी नॉर्मल रिएक्शन का भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो चलो मैं फ्रिक्शन का एक केस मान लेता हूँ। मान लो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है और तुम्हारा बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, मान के चलो सर। ओके, तो अगर तुम्हें पता है कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो उसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा, और तुम्हें फ्रिक्शन में बताया गया है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन जिस तरफ है उसके ऑपोजिट में हमेशा रहेगा तुम्हारा फ्रिक्शन, और बॉडी मूवमेंट कर रहा है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो बॉडी मोशन में है, यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सवाल यहां पे ये बनता है कि फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो अभी यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्विस्ट आने वाला है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लिखेंगे, तुम्हें पता है कि Fs cos थीटा हम लिखते थे। ओके, तो ये जो फोर्स हम लेंगे ये कौन सा फोर्स लेंगे? क्या हम एक्सटर्नल फोर्स ले लेंगे? यहाँ पे जो फोर्स का वर्क डन पूछा है वही फोर्स हम लेने वाले हैं, वो है तुम्हारा Fk। ओके, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, Fk उस तरफ है, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इन दोनों के बीच जो एंगल है 180 डिग्री है। मैं यहाँ पे वापस ये डायग्राम बनाना चाहूंगा, ये देख लो, और इन दोनों के बीच है एंगल 180। सो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री एंड दैट इज कम आउट टू बी a negative force, a negative work done. This is what the meaning of negative work done you see here. ओके, तो यहाँ पे और एक लाइन में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, और ये क्या चीज है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो एनर्जी गेन है पॉजिटिव का, उसका अपोजिट वाला कैसे है एनर्जी लॉस, यहाँ देखें।